Good morning, all of you. Very, very, very. Sir. Good morning. How are you, sir? Morning. I'm fine. How are you? Fantastic. Sir, fine. Sir, where are you? Sir, on your Bajidi? Okay, we have done till which question? I think we have done till 7th question. No, sir. 6th question. Today we have to do 7th. We have to do the 7th one. Exercise 14A. Question number 7. There are two pairs of parallel lines in the figure. AOB CDE. Excuse me, sir. Yes. Sir, Sanya is not able to connect. Like she's just reconnecting and she's just not able to connect. So she's saying, can you just please say that to sir? Okay. Okay, all of you. So there are two pairs of parallel lines here. AO is parallel to CD. BD is parallel to CE. हमको यहाँ पर बेटा बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ECD. ECD एंगल देखिए कैसे पता चलेगा कि कौन से एंगल की बात हो रही है. ECD एंगल कौन सा है? E पर फिंगर रखो, E से C पे जाओ, C से D पे जाओ, बीच में कौन सा एंगल आया? ECD. C आ रहा है बीच में, दैट मीन्स ये वाला एंगल X. We have marked the angle as X.
ये वाला एंगल जिसका साइड रोल है इसमें, ये मैं y मार्क कर लेता हूँ। y एंगल D को मैंने y मार्क कर लिया है, ध्यान से देखो। वी विल बी यूजिंग दिस एंगल टू फाइंड x। अल्टीमेटली हमको x फाइंड करना है। ओके, सो Sir, व्हेन, now सॉरी, I नाउ joined. व्हाट? I joined. Able to see. Now your screen. Keep your video off. I think there is some network problem. It will come. Join, but sir, The screen will come. Keep your video off, and it will come in some time. देखो बेटा, ऐसे करके दो पैरेलल लाइन जब जाती हैं तो दिस इज द ट्रांसवर्सल, ये वाली ट्रांसवर्सल है, ठीक है। सो ये दो एंगल्स जो हो गए, दीज आर को इंटीरियर एंगल्स, एंड को इंटीरियर हुए। और अगर आगे मैं इसको और प्रोड्यूस कर दूंगा तो ये वाले जो दो एंगल हो गए, दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये दो एंगल्स हो गए कॉरस्पॉन्डिंग, ट्रांसवर्सल को आगे और प्रोड्यूस कर दिया। एक एंगल इंटीरियर में, एक एक्सटीरियर में, दोनों एंगल सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, सो these are corresponding angles. So corresponding angles are always equal, so therefore we can see in the figure that angle 50 degree and angle y, ये दोनों equal हो गए, y equals to 50 degrees, y corresponding angles। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, अब x निकालना है। देखो, सो y हमको पता चल गया है, y कैसे, x कैसे निकलेगा y की हेल्प से। देखिए, यू कैन सी CE इज पैरेलल टू DB। CE और DB आपको पैरेलल दिख रहे हैं। देखो फिगर में ऐसा कुछ है, यहाँ पर C है, यहाँ पर E है, ये D है, ये B है, एंड ये वाला एंगल x है, ये y है। y हमको पहले से पता चल गया 50 डिग्री। x कैसे निकालेंगे? वी नो दैट CE इज पैरेलल टू DB, हमको पता है CE और DB पैरेलल है। x एंड y यहाँ पर हो गए को इंटीरियर एंगल्स। x एंड y आर को इंटीरियर एंगल्स। तो को इंटीरियर एंगल्स में क्या प्रॉपर्टी होती है? दैट सम इज 180। सो x plus y equals to 180 degrees, reason को इंटीरियर एंगल्स। Put the value of y here, y की वैल्यू 50 लगा दीजिए। Therefore x equals to 180 minus 50, so the answer is 130 degrees। यही करना था हमको। We had to find the value of x। x मतलब एंगल ECD, आगे आपका एंगल ECD इक्वल टू 130। ओके, Okay, sir. let's start with question number 8। no, sir, I'm not done because my screen is not there. So can you just wait for 1 minute? Yes। Sir, done. Yes, sir, fine, I've done. बेटा, if anyone is left, But sir, just take a screenshot अगर किसी का रह गया है। no, sir, it's done. Done। Question number 8। M like figure is given in the question। So in this figure, A, B and CD are parallel lines। A, B and CD are parallel lines। We have to find the value of angle BOD।
This is 50. This is 40. एंगल BOD हमको निकालना है. If you look at the board, Yes. okay. So in this question, you will not be able to do the question without any construction. Construction यहाँ पर करना ही पड़ेगा. Without construction, we cannot do the question. Construction क्या है? Construction होता क्या है? Construction is something done by us to solve the question. एक ऐसा कुछ एक्स्ट्रा लाइन या कुछ और चीज हम खुद यहाँ पर ऐड करते हैं इन द फिगर टू सॉल्व द क्वेश्चन. टेम्परेरीली उसको ऐड किया जाता है टू हेल्प आवर सेल्फ सो दैट वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन. सो दिस इज नोन एज कंस्ट्रक्शन. क्या होगा अब इस फिगर में, क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे? वी विल ड्रॉ अ लाइन PQ. एक PQ लाइन ड्रॉ कर लेंगे पासिंग थ्रू O and parallel to AB. So this is a line PQ. ये मैंने अपने आप कंस्ट्रक्ट करी है, फिगर में नहीं है. तो ऐसे कंस्ट्रक्शंस को जनरली हम डॉटेड लाइन से दिखाते हैं. That means PQ is not actually a part of the question. ये सिर्फ टेम्परेरीली हम लोग यूज कर रहे हैं, तो डॉटेड लाइन से कंस्ट्रक्ट करते हैं. ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम विदाउट डॉटेड भी अगर आप कंस्ट्रक्ट करेंगे नो प्रॉब्लम, बट बस ऐसे ही शो करने के लिए हम लोग डॉटेड लाइन बना लेते हैं कि दैट दिस इज एडेड बाय अस इन द फिगर. क्या है ये कंस्ट्रक्शन? क्या किया है हमने? कंस्ट्रक्शन क्या किया है? वी हैव ड्रॉन अ लाइन PQ व्हिच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट O पॉइंट से पास हो रही है, देखिए PQ, एंड इट इज पैरेलल टू AB के पैरेलल बनाई है हमने. अब इसका यूज कहाँ पर है, कैसे करेंगे इसको यूज? देखो, अगर सपोज मैं आपको कहता हूँ, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जस्ट एन एग्जांपल. सपोज मैं आपको कहता हूँ 30 डिग्री ये एंगल है, ये वाला एंगल मान लीजिए 40 डिग्रीज है, मान लो. दो एंगल्स हैं ये, ठीक है. तो एक तो एंगल है AOB मान लीजिए, और दूसरा एंगल है BOC. एंगल AOB एंगल इज 30 डिग्रीज, एंगल BOC इज 40 डिग्रीज. मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ ऐसे ही, दिस इज नॉट इन द फिगर, ये अलग एंगल्स मैंने लिए हैं कुछ. अगर मुझे एंगल AOC निकालना है तो मैं क्या बोलूंगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल AOC? मैं ये पूरा एंगल बात कर रहा हूँ, एंगल AOC ये पूरा हो गया. तो एंगल AOC कितना हो गया? दोनों को ऐड कर देंगे, 30 + 40 एंगल AOC. हम लोग क्या बोलेंगे, दैट एंगल AOC इज इक्वल टू 70 डिग्रीज. एम आई राइट और नॉट? Yes. है ना? एंगल AOC 30, दोनों को सम कर देंगे, ऐड कर देंगे, एंगल AOC मिल जाएगा 70 डिग्रीज, है ना? तो यही काम हमको यहाँ पर करना है. कैसे करेंगे? ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करना है. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल BOD. BOD ये वाला एंगल है जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर मार्क किया हुआ है. देखो एंगल BOD, मैं कलर चेंज कर देता हूँ. ऑरेंज कलर थोड़ा अच्छा दिखेगा, अलग ही दिख जाएगा. सर दिखेगा या नहीं? अरे मस्त दिखेगा. एंगल BOD ये वाला ऑरेंज कलर से देखो, आपको दिख रहा है? तो ये Yes, एंगल sir. हमको फाइंड करना है. अब मैं क्या करूंगा, इसको दो पार्ट में ब्रेक करूंगा. एक तो ये व्हाइट से मैंने जो मार्क करा एंगल BOQ, एंड दूसरा येलो नहीं ब्लू ले लेते हैं, ये वाला. ये हो गया आपका एंगल लाइट ब्लू कलर से जो किया है, वो दिख नहीं रहा. व्हाइट और लाइट ब्लू एक जैसे लग रहे हैं, तो मैं कोई जान के ले रहा हूँ, मैं ऐसे डिफरेंट कलर्स. सर ब्लैक कर दीजिए. लाइट Pink. पिंक ले दिखेगा. लेते हैं, लाइट पिंक. ब्लैक इस पे चलेगा नहीं ज्यादा अच्छा. ये व्हाइट से मैच कर रहा है. Yes, sir. Sir, green.
sir, green. No, sir, green. ब्लैक दिख रहा है? Yes, sir, दिख रहा है. Yes, sir. Sir, I told you black ही दिखेगा. तो ये व्हाइट और ब्लैक कलर से जो दो एंगल्स हैं, अगर मैं ये दोनों एंगल्स अलग अलग फाइंड कर लेता हूँ, आई विल बी एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल BOD विच इज ऑरेंज कलर. ऑरेंज कलर से दिख रहा है आपको एंगल BOD. तो ये पूरा निकालने के लिए हम दो काम करेंगे, एक व्हाइट वाला एंगल निकाल लेंगे, एक ब्लैक वाला एंगल निकाल लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ एंगल BOD विच इज रिप्रेजेंटेड बाय ऑरेंज कलर. ठीक है, यही करेंगे. अब एंगल, सबसे पहले एंगल BOQ बहुत इजीली निकल जाएगा. आप देखिए AB एंड PQ पैरेलल लाइन है और ऑल्टरनेट एंगल्स कैसे बनते हैं, ऐसे Z टाइप की फिगर बनती है. देखो ऑल्टरनेट एंगल्स में ध्यान दिया है कभी आपने? ये वाला एंगल और ये वाला ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं, अपोजिट साइड्स में हुए हैं. देखो ट्रांसवर्सल की अलग अलग साइड में एंड दोनों एंगल इंटीरियर में, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए. नाउ दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं, तो यहाँ पर देखिए ऐसा ही कुछ बन रहा है. ये 50 डिग्री एंगल और ये व्हाइट कलर वाला जो एंगल है, दीज आर ऑल्टरनेट, तो ये 50 हो जाएगा ये वाला एंगल. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन व्हाइट कलर. ऐसे ही एंगल D 40 डिग्रीज जो दिया हुआ है आपको, 40 डिग्रीज, तो ये ब्लैक कलर एंगल, ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर, अगेन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, ये 40 हो जाएगा. तो 50 + 40 एंगल BOD टोटल कितना आ गया? 50 + 40 इक्वल टू 90 डिग्रीज. यही काम करना है. ऑल ऑफ यू, द कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज क्लियर और नॉट? यस, बताओ बेटा. Sir, Nishu is saying that she got disconnected. Ask her to connect. Yes, sir, clear. Has she connected again? No, sir, she is not connected still. But sir, I have told to her. Okay. चलिए आगे करते हैं. निशु कैन, अगर नहीं हो पा रही कनेक्ट, शी कैन सी द रिकॉर्डिंग. Students, please, those who can start their video and they don't have any network problem, please start your videos. Okay, so angle BOQ, सबसे पहले एंगल BOQ निकालेंगे, which is white color वाला एंगल. एंगल BOQ is equal to एंगल ABO. ऑल्टरनेट ABO एंगल देखिए, फिंगर चलाइए पता चल जाएगा ABO एंगल कौन सा है. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. अच्छा, कंस्ट्रक्शन तो मैंने लिखा ही नहीं है. कंस्ट्रक्शन जो आप कर रहे हैं वो आपको मेंशन भी करना है कि क्या करा है. कंस्ट्रक्ट लाइन PQ, कंस्ट्रक्ट अ लाइन PQ पासिंग, एक बच्चे का वीडियो ऑन है बस, पासिंग थ्रू O and parallel to AB. AB के पैरेलल बनाइए, O से पास हो रही है. ये कंस्ट्रक्शन है, जो करा वो लिख दिया बस. इसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं. एंगल BOQ is equal to एंगल ABO. रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. एंगल BOQ हमको मिल गया, कितना मिल गया? 50 डिग्रीज. ठीक है, सेम यही काम नीचे करेंगे. नीचे बोले तो एंगल DOQ निकालने के लिए, एंगल DOQ यानी कि ब्लैक कलर वाला जो एंगल है, एंगल DOQ इज इक्वल टू एंगल CDO. सेम रीजन, यही रीजन इस वाले ब्रैकेट में आ जाएगा, आपको लिखना है, मैंने एरो बना दिया है. एंगल DOQ इज इक्वल टू एंगल CDO, देयरफॉर एंगल DOQ आपको मिल गया 40 डिग्रीज. हमें पता है एंगल BOD कैसे बनेगा, ऑरेंज वाला एंगल कैसे बनेगा. व्हाइट और ब्लैक को ऐड कर देंगे तो ऑरेंज वाला एंगल मिल जाएगा. ऑरेंज वाले एंगल का नाम क्या है? BOD, है ना? यहाँ तक नोट कर लिया सबने. तो एंगल BOD
इज इक्वल टू एंगल BOQ यानी कि व्हाइट वाला एंगल प्लस एंगल DOQ यानी कि ब्लैक वाला एंगल। दोनों हमको पता है। अब BOQ की वैल्यू पता है 50 डिग्रीज है, DOQ की वैल्यू पता है 40 डिग्रीज है, तो 50 प्लस 40 कितना हो गया 90। आंसर आ गया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चंस यहाँ से जो स्टार्ट हैं आपके क्वेश्चन नंबर 7 से, बल्कि सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। इतनी छोटी एक्सरसाइज है, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लिमिटेड क्वेश्चंस आर देयर, घुमा फिरा करके यही क्वेश्चंस एग्जाम में आने हैं। और इसमें भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपके क्वेश्चन 6 ऑनवर्ड्स स्टार्ट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये हैं। नॉट ओनली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये क्वेश्चंस इसलिए भी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये आपका बेस प्रिपेयर करेंगे फॉर द हायर क्लासेस। Sir, can you just scroll up? यस, जो मैंने अभी समझाया बस वही मैंने यहाँ पर लिख दिया है। निशु, आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। Yes, sir, somewhat not clear, so I will see the recording. या नेक्स्ट। Now, can you just scroll down? Yes, sir. Sir, done. You can just run. क्वेश्चन नंबर 9। नाइन वी विल डू लेटर। कौन सा भी हमने कौन सा किया था? 8 किया था ना। 9 वी विल डू लेटर आफ्टर डूइंग क्वेश्चन 10, 11, 12, 13, 14, 15। 9th वाला सबसे लास्ट में करेंगे। 10th कर लेते हैं पहले। So 9 question we have to We will do later, yes, at the last। 9th लास्ट वाले के बाद में करेंगे, 15 के बाद करेंगे। ABCDE। ये जो क्वेश्चन है इसमें नीचे एक डॉटेड लाइन बनाई हुई है। एक्चुअली दैट डॉटेड लाइन इज नॉट द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, वो इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है डॉटेड लाइन जो है। ओके ओके, दिस इज 120 डिग्रीज, 100 डिग्रीज। AB is parallel to CD given। हमको X फाइंड करना है, सिर्फ इतना क्वेश्चन है। ये फिगर दिया हुआ है आपको, AB पैरेलल टू CD गिवन है क्वेश्चन में, एंगल B 120 दिया हुआ है, एंगल C 100 दिया हुआ है। आपको X फाइंड करना है। कितना है X आपको दिख रहा है? एंगल BEC, ये फाइंड करना है, एंगल BEC। ओके अब जो डॉटेड लाइन है दैट इज एक्चुअली नॉट द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन बट इट इज द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। तो वो वहां पर इन्होंने बना दी है, बट एक्चुअली इट विल नॉट बी गिवन। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ये जो डॉटेड लाइन है ये गिवन नहीं होगी, आपको खुद बनानी है, बाद में बनानी है। इट इज द पार्ट ऑफ अ सॉल्यूशन, पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन डॉटेड लाइन। वैसे ही जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में हमने बनाई थी, क्वेश्चन 8 में कंस्ट्रक्शन किया था, वैसे ही यहाँ पर करना है, उसको मेंशन करना है कि दैट कंस्ट्रक्ट अ लाइन PQ, FE, FG, जो भी इन्होंने नाम दिया है वो हमने, जरूरी नहीं है कि वही नाम दें,
तो पी क्यू नाम दे देते हैं हम। कंस्ट्रक्ट अ लाइन पी क्यू construct a line PQ passing through E and parallel to AB। ये कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। लिखिए कंस्ट्रक्ट पंखा आप भी चला लो अपने लिए। a line PQ passing through E and parallel to AB। AB के पैरेलल भी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई भी लाइन बना दी ई से पास होते हुए, ऐसा नहीं है, कंपलसरी है AB के पैरेलल होने चाहिए। Okay, so this is the construction। अब कैसे x की वैल्यू फाइंड करेंगे? इजी है। हमको इन दिस क्वेश्चन AB is parallel to CD ये गिवन है। दो लाइंस ऐसे भी पैरेलल हो सकती हैं, जरूरी नहीं है कि एक दूसरे के ऊपर से ही निकल रहे हो। स्टिल these two lines can be parallel। ये दो दिख रही हैं आपको, मैंने ये बनाई है अलग से। ये पैरेलल है या नहीं है? ऑब्वियसली दे आर पैरेलल, जरूरी थोड़ी कि एक दूसरे के ऊपर से ही निकले। आगे प्रोड्यूस कर देंगे तो हो जाएगी, दिख जाएगा आपको इक्वल है, पैरेलल है, सॉरी। सो AB और CD के साथ यही केस है, AB इज पैरेलल टू CD। अब PQ हमने AB के पैरेलल बनाई है, सो PQ विल आल्सो बी पैरेलल टू CD। वो CD के भी पैरेलल ऑटोमेटिकली हो जाएगी, बिकॉज AB CD के पैरेलल है एंड PQ AB के पैरेलल है, तो PQ CD के भी पैरेलल हो जाएगी। ओके, आर यू ऑल गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? Yes, sir. Yes. तो just a minute। अब इसका फायदा उठाएंगे हम, जो PQ लाइन बन गई AB और CD दोनों के पैरेलल, इसका फायदा उठाते हैं। देखिए कैसे। को इंटीरियर एंगल नाम की चीज सुनी हुई है? ये दो लाइंस पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है ना? जो मैंने बनाई है दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट करने वाली लाइन, ये क्या है? ट्रांसवर्सल है। सो दीज टू एंगल्स आर को इंटीरियर। ये हैं को इंटीरियर, एम आई राइट? Yes, दोनों का को इंटीरियर का सम क्या होता है? 180। यही फायदा यहाँ पे उठा रहा हूँ। इस एंगल को A लगा दिया। अब बताइए 120 डिग्री वाला एंगल एंड एंगल A, ये दोनों को इंटीरियर हो गए, है ना? एंड एंगल B सेम इसी तरीके से, एंगल B एंड 100 डिग्री, ये भी को इंटीरियर हो गए। आइए करते हैं, क्वेश्चन खत्म होने वाला है। A plus 120 equals to 180 degrees। Co-interior angles। A की वैल्यू कितनी आ गई? 180 में से 120 माइनस हो जाएगा, 60 डिग्री आ गया एंगल A। ना क्लियर है? Yes, sir. ये अभी हमने अपने पास से मार्क करे हैं, इनका यूज करना है, फायदा उठाना है। ये इस मूवी में साइड एक्टर का रोल कर रहे हैं, A और B दोनों। मेन हीरो मूवी का X है, ठीक है। अल्टीमेटली हमको X को हीरो बनाना है, हीरो दिखाना है, X की वैल्यू फाइंड करनी है। डायरेक्टर है। सॉरी, हम लोग डायरेक्टर हैं। हाँ जी, हम लोग डायरेक्टर हैं, हम लोग मूवी डायरेक्ट कर रहे हैं। A and B are the side actors and X is the main actor of the movie, main hero। So A की वैल्यू 60 आ गई। अब B को यूज करते हैं, B plus 100। B और 100 ये भी को इंटीरियर एंगल्स हैं, इन दोनों का सम भी 180 होगा। ब्रैकेट में सेम रीजन आ जाएगा, ठीक है बेटा? तो एंगल B इक्वल्स टू 180 माइनस 100 कितना हो गया? 80 डिग्रीज। बोर तो नहीं हो रहे हैं आप लोग? मैं पढ़ाए जा रहा हूँ। No, sir. No, sir. No, sir. Sir, just I have a question. यस।
सर आप आज इतने सीरियस क्यों हैं? बस बेटा क्या ही बताऊं। Yes, sir. Sir, that's 100 degree or 106. हाँ जी, Sir, in the second one, it's 100 degree or 106. नहीं नहीं, ये 100 है बेटा, 100 है, 100, ठीक है, 100। देखो यहाँ पर 100 डिग्री एंगल ये है ना, ये वाला। तो यहाँ पर नाउ वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अब देखो यहाँ पे, since we have got the value of a and b, we will use these values to find x। एक straight line पर सेम साइड में कितने भी एंगल्स बना दो, लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर याद करो। स्ट्रेट लाइन पर सेम साइड में कितने भी एंगल्स बना दीजिए, तीनों एंगल्स, तीनों चारों कितने भी हो, सबका सम कितना होता है, 180 डिग्रीज होता है। पढ़ा है आपने स्ट्रेट लाइन? Yes, sir. स्ट्रेट एंगल पढ़ा है, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्रीज, वही है लाइन्स एंड एंगल्स में आप लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, 2000 बार पढ़ चुके हैं। सो एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ लाइन, सबका सम होता है 180। इसका फायदा उठाएंगे टू फाइंड एक्स। ए बी और एक्स को देखिए, यही केस हो रहा है तीनों के साथ, एंगल ए, एंगल बी और एंगल एक्स के साथ। ऑल द थ्री एंगल्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ अ लाइन, यानी कि तीनों का सम क्या होगा, 180 हो जाएगा। a plus b plus x equals to 180 degrees. Reason: angles on the same side of a line, therefore the sum is 180। एंगल ए 60 डिग्रीज, एंगल बी 80 डिग्रीज निकाल चुके हैं, एक्स नहीं पता, निकालेंगे। 60 plus 80 140, 140 plus x equals to 180, x equals to 180 minus 140, therefore x equals to 40 degrees। कितने बच्चों को समझ में आ गया? Yes, sir. Understood. Yes, sir, understood. Yes, sir. Understood. Very सर good. थोड़ा थोड़ा आ गया, जब प्रैक्टिस होगी तब आ जाएगा। वेरी गुड। प्रैक्टिस करने के लिए यू कैन सी द रिकॉर्डिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट निशु? यस सर, सर व्यूज बढ़ेंगे आपके। हाँ, तो बार बार रिकॉर्डिंग को देखा करो प्रैक्टिस करने के लिए। ओके सर। सर, हम आपके व्यूज मिलियंस तक बढ़ा देंगे। वाह बेटा वाह। जो भी सर आपका अकाउंट हैक करके। अकाउंट हैक करके कैसे बढ़ सकते हैं? सर फाइनली इस वाले समय हमने पूरी फिल्म बना ली। यस, मूवी पूरी हो गई, कंप्लीट हो गई। वी हैव Yes, and X is the finally hero. got that X is the hero, main hero, real hero of the movie. He So has won the yesterday we had a battle lot of fun. in the school. Yes sir. You shooted for the song. Yes sir. And sir, at the last, like I came with Varun sir, and there were one person also, Shikhar. So we were having a lot of fun that time too. You came back with Varun sir. Yes sir. Very good. And sir, when I just told Varun sir कि सर मैं आपके साथ चले जाऊँ, तो सर कहते हैं मैंने ठेका ले रखा है, तो मैंने बोला आप ले लीजिए। Then he start laughing. मजाक में कहा होगा उन्होंने, मैंने ठेका ले रखा है। Yes sir. सर वो बहुत डराते हैं, फिर हंसने लगते हैं। हाँ, Sir, Varun sir has taught me skating. very good. Varun sir has taught me maths. Sir, you are maths teacher and Varun sir has taught you. Yes, वो अलग ही मैथ्स पढ़ाते हैं कुछ। चलो बेटा, लास्ट 2 minutes left, we will not be able to do the question। जितनी बातें करनी है कर लो। ओके सर। सर क्या बात कर रहे हैं हम? हम लोग बात कर रहे थे, वरुण सर ने मुझे मैथ्स पढ़ाई। सर आपकी स्टोरी याद ही रह गई थी। हाँ, आपने बोला था कि मैं अपने दोस्तों को पढ़ाता था,
उसके बाद क्या हुआ? सॉरी, सर आपकी स्टोरी आधी रह गई थी, आपने बोला था मैं अपने दोस्तों को पढ़ाता था, फिर उसके बाद मीटिंग खत्म हो गई थी, तो सर उसके बाद क्या हुआ था? बता दे, मैंने कहाँ कहाँ बता दिया। तो मैंने बताया पहले मैं जब छोटा था आई वांटेड टू बिकम एन एक्टर, देन आई वांटेड टू नहीं सर, जॉइन ये तो आर्मी, हो देन गया, आई ये तो देन हो आई गया। वांटेड टू जॉइन आर्मी, फिर उसके बाद आई स्टार्टेड डूइंग इंजीनियरिंग। आई वांटेड टू बिकम एन इंजीनियर बन गए, जॉब छोड़ दी। फिर व्हेन आई वाज इन बीटेक, आई वाज मतलब आई लाइक टीचिंग माय फ्रेंड्स, उनको पढ़ाता था। देन आई स्टार्टेड आफ्टर कंप्लीटिंग माय बीटेक, आई बिकेम एन इंजीनियर इन फरीदाबाद। देयर वाज अ कंपनी हाईटेक ऑटोमेशन, आई स्टार्टेड वर्किंग देयर। So उसके बाद when I was working, after few months I realized that I am not enjoying the job. I left the job. मुझे मजा नहीं आ रहा था, किक नहीं आ रही थी, तो I left it. I then decided कि मुझे तभी realize हुआ कि वो जो किक आती है वो पढ़ाने में बहुत अच्छी किक आती है। तो when I was teaching my friends मुझे अच्छा लगता था, when they used to score marks because of me, and then they used to thank me, यार तेरी वजह से पास हो गए, वरना हम लोग तो पास भी नहीं हो पाते ऐसे करके। So I then I decided, sorry, सर एंड होने वाली कंटिन्यू। है, फिर से एंड होने वाली है मीटिंग। यस सर।